जी अस्सलाम वालेकुम जी. This is our recommended book, Statistics for Business and Economics by Anderson Sweeney. Today we are going to discuss our next topic, that is multiplication law. So in the introduction to probability chapter number that is 4, we have already discussed the experiments, counting rules and assigning probabilities, and then we discussed events and then probabilities. Then we discussed some relations of probability. Then the last lecture we discussed conditional probability. So in this talk, today's lecture, we are going to discuss the independent events and multiplication law. That is section number 4.4. In chapter number 4, Introduction to Probability, the book is Statistics for Business and Economics. The writer is Anderson Sweeney. So in the last lecture, we discussed the concept of conditional probability. So in the conditional probability, we discussed that if we obtain some new information and learn that a related event denoted by B already occurred, we will want to take advantage of this information by calculating a new probability for event A. This new probability of event A is called conditional probability and is written as probability of A, given that that slash is basically given that probability of B. That means B event B has already occurred. So this is the actual tables. In this table, the singular probabilities, that is 0.80, 0.20, 0.27, 0.73, these are called marginal probabilities, right? Because these are single probabilities. And in between, like 0.24 is the probability of men and promoted. The second one, 0.03, probability of women and promoted. The 0.56 is probability of men and not promoted, and 0.17 is the probability of women and not promoted, right? So these are basically the probabilities of two events, so we call them joint probabilities, right? And how to calculate these probabilities we have already had already discussed in the last lecture. So I hope that everyone will be clear. If in case you guys are not clear or you have any question, you can ask me in our WhatsApp group. So basically this is the formulation of conditional probability, that is probability of A or B are two events, right? So probability of A given that B, that is equal to probability of A and B divided by probability of B, or probability of B given that A, that is equal to probability of A and B divided by probability of A, right? So this is the Venn diagram. The white one is event A, the blue one is event B, and in between some common part is event A and B, right? So let's discuss again because we will continue this
Example for the next topic. As an illustration of the application of conditional probability, consider the situation of the promotion status of male and female officers of a major metropolitan police force in the eastern US. The police force consists of 1,200 officers. Out of these 1,200 officers, 960 men and 240 women. Over the past 2 years, 324 officers on the police force received promotions. The specific breakdown of promotion for male and female officers is shown in table 4.4. After reviewing the promotion record, a committee of female officers raised a discrimination case on the basis that 288 male officers had received promotions, but only 36 female officers had received promotions. The police administration argued that the relatively low number of promotions for female officers was due not to discrimination, but to the fact that relatively few females are members of the police force. Let us show how conditional probability could be used to analyze the discrimination charge. तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन ये है कि टोटल जो है वो आपके 1200 ऑफिसर्स हैं, जिनमें से 960 जो है वो मेन है, 240 जो है वो वुमेन है, ठीक है जी। और पिछले 2 सालों में जो है वो 324 ऑफिसर्स को प्रमोशन मिली है। अब उस प्रमोशन की बुनियाद के ऊपर 324 ऑफिसर्स को जो प्रमोशन मिली है, तो फीमेल जो ऑफिसर थी उन्होंने क्या किया कि डिस्क्रिमिनेशन केस ओपन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि जो 324 ऑफिसर्स को प्रमोशन दी गई है उनमें से तो 288 जो है मेल ऑफिसर है, जबकि सिर्फ 36 फीमेल ऑफिसर्स को प्रमोशन मिली है, ठीक है, जो कि गलत है। जबकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है कि वो प्रमोशन जो है वो फीमेल ऑफिसर को इस वजह से कम दी गई है, डिस्क्रिमिनेशन की बेस के ऊपर कम नहीं दी गई, बल्कि इस वजह से कम दी गई है कि जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो पुलिस फोर्स में ऑलरेडी जो है वो बहुत कम है। तो आए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरह इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो लेट एम is an event that an officer is a man. W is an event that an officer is a woman. A is an event that an officer is promoted, or A complement जो है that is an event that an officer is not promoted, ठीक है। तो आए आप पहला इसके ऊपर ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि किस तरह, ठीक है। और ये जो ब्रेकडाउन है बेसिकली ये 2 वे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या आप टेबल किस तरह ड्रॉ करते हो, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखें 288 वो लोग हैं जो मैन भी हैं और उनको प्रमोशन भी दी गई है, ठीक है जी। टोटल मैन कितने हैं? 960 है। टोटल वुमेन कितनी है? 240 है। टोटल बंदा को प्रमोशन कितनी दी गई है? 324 है। तो उनमें से मेल कितने हैं? वो 288 हैं और 36 जो वुमेन है। अब बाकी तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 960 माइनस 288 करेंगे, आपके पास 672 वो मैन आ जाएंगे जिनको प्रमोशन नहीं मिली, ठीक है। इसी तरह आप 240 माइनस 36 करेंगे, क्योंकि 36 तो आपके पास गिवन है, तो आपके पास 204 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 204 वो लोग हैं जो प्रमोशन जिनको नहीं मिले। अब 1200 में से 324 लोगों को प्रमोशन मिली हुई है, तो 1200 माइनस 324 करेंगे तो आपके पास 876 आ जाएंगे, ठीक है। 876 वो लोग हैं जिनको प्रमोशन जो है वो नहीं मिली गई, ठीक है। तो दोबारा देखें, यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में देखें, मैन के नीचे 960 है, वुमेन के नीचे 240 है, ठीक है जी। और टोटल में 1200, तो 1200 में 960 मैन है, 240 वुमेन है। और इस तरह आप टोटल देखें तो 1200 में से 324 जो है उनको प्रमोशन मिली है, 876 को प्रमोशन जो है वो नहीं मिली। और अंदर अगर हम लोग मेन के अंदर स्पेसिफिकेशन करेंगे तो 960 में से जो है वो
288 मैन को प्रमोशन मिली है और 672 मैन को प्रमोशन नहीं मिली। और इसी तरह वुमेन में 36 को प्रमोशन मिली है और 204 को प्रमोशन जो है वो नहीं मिली। ठीक है। ये तो था आपके पास गिवन डेटा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटीज बनानी है। ठीक है। तो आप जॉइंट प्रोबेबिलिटीज इस तरह बनाएंगे, देखिए 288 है, 288 बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन है। तो आप 288 को डिवाइड करेंगे 1200 के ऊपर, तो आपके पास 0.24 आ जाएगा। और मैन एंड नॉट प्रमोटेड 672 डिवाइड बाय 1200 करेंगे तो 0.56 आ जाएगा। इसी तरह वुमेन की करेंगे 36 डिवाइड बाय 1200, 204 डिवाइड बाय 1200, तो इन चारों की आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, 0.24, 0.56, 0.03, 0.17। अब ये जो प्रोबेबिलिटी आपके पास दो इवेंट्स की आई है, इसको आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब आपने सिमिलर की निकालनी है, तो आप क्या करें, 960 डिवाइड बाय 1200 करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन आ जाएगी। वुमेन की निकालनी हो तो 240 डिवाइड बाय 1200 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोटेड की निकालनी है, ए की निकालनी है तो 324 डिवाइड बाय 1200 करेंगे और से 876 डिवाइड बाय 1200 करेंगे तो आपके पास ये जो बाहर वाली टोटल वाली हैं ये आ जाएंगी। ठीक है, और ये आपकी मार्जिनल कहलाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो 0.24 है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन एंड प्रमोटेड की है। जो 0.03 है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन डब्ल्यू एंड ए की है। जो 0.56 है वो एम एंड ए कम्प्लीमेंट की है। और 0.17 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन एंड ए कम्प्लीमेंट की है। ठीक है जी। ठीक हो गया। Let us begin the conditional probability analysis by computing the probability that an officer is promoted given that officer is man। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक ऑफिसर जो है वो प्रमोटेड हुआ है, गिवन क्या है आपको कि जो ऑफिसर है वो मेल है। इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नोटेशन वी आर अटेम्प्टिंग टू डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज प्रमोटेड गिवन दैट एम। To calculate probability of A and M, A given that M, we first realization that this notation simply means that we are considering the probability of the event A promotion given that the conditional design as event M, the officer is male, is known to exist। ठीक है, तो this one, right? Probability of A and man की आप 0.24। ठीक है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन एंड ए आपके पास 0.24 है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन जो है वो 0.8 है। तो आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डेट इज 0.24 डिवाइडेड बाय 0.8 डेट इज 0.30। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 30% चांसेस है कि जो प्रमोशन होगी वो मैन की होगी। ठीक है जी, आपके पास ये फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड एम की वैल्यू थी वो आपके पास 0.24 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम जो था वो आपके पास 0.80 था। तो आपके पास आंसर जो है वो 0.30 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह आप अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस रिटर्न टू द इश्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द female officers. The marginal probabilities in row 1 of table 1 show the probability of promotion of an officer probability of A is 0.27 regardless of whether that officer is a male or female। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्रमोशन के जो चांस हैं वो 27% है, चाहे वो ऑफिसर मेल है या फीमेल है। ठीक है, however the critical issue in the discrimination case involves the two conditional probabilities के प्रमोशन मिली है गिवन डेट के ऑफिसर जो है वो मेल है, या और प्रोबेबिलिटी प्रमोशन है गिवन डेट के वो ऑफिसर जो है वो वुमन है। दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन गिवन डेट एन ऑफिसर इज a man and what is the probability of a promotion given that the officer is a woman। हमने
प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट मैन के हिसाब से फाइंड कर ली है, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट के ऑफिसर जो है वो वुमेन है, ठीक है। इफ दीज प्रोबेबिलिटीज, ताकि उससे हमें पता चल सके कि क्या जो डिस्क्रिमिनेशन केस फीमेल ऑफिसर की तरफ से रेज हुआ है वो उसमें कोई है, सच्चाई है भी या नहीं है, कि क्या मेल ऑफिसर का हम लोगों ने देखा कि उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर निकला था 0.30, ठीक है। तो हम लोग फीमेल ऑफिसर का आंसर निकालते हैं तब फाइंड करते हैं कि क्या ये दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्या दोनों के चांसेस सेम होते हैं प्रमोशन के लिए, या वो डिस्क्रिमिनेशन जो केस है जो किया गया फीमेल ऑफिसर की तरफ से वो वाकई वैलिड है या नहीं है, ठीक है। If these two probabilities are equal, our discrimination argument has no basis because the chances of promotion are the same for male and female officers, right? However, a difference in the two conditional probabilities will support the position that male and female officers are treated differently in promotion decisions, right? तो अब हमें क्या करना है, प्रमोशन दी गई है गिवन डेट के ऑफिसर जो है वो वुमेन है, तो उसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डब्ल्यू डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डब्ल्यू जो है वो आपके पास 0.03 है, जबकि प्रोबेबिलिटी जो है वुमेन की वो 0.20 है, दैट इज 0.15। तो इसका मतलब मेन की वो प्रोबेबिलिटी 0.30 आई थी, वुमेन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.15 आई है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो मेन है उसको डबल चांसेस होते हैं प्रमोशन के रिगार्ड, अगर उसका कंपैरिजन किया जाए वुमन के। सो व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रमोशन गिवन दैट द ऑफिसर इज अ मैन इज 0.30, twice the 0.15 probability of promotion given that the officer is a woman. Although the use of conditional probability does not itself prove that discrimination exists in this case, the conditional probability value support the argument presented by the female officer. इससे हमें हम लोग आर्गुमेंट प्रूफ तो नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या करती है, हमें सपोर्ट करती है कि क्या जो फीमेल ऑफिसर्स ने आर्गुमेंट पेश किया था उसमें वाकई ही जो है वो सच्चाई है, ठीक है। अब आपके पास अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। इन दी प्रोसीडिंग इलस्ट्रेशन, जो आपने पीछे एग्जांपल अभी देखी है, जो प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी है डेट इज 0.27, और जो प्रमोशन गिवन डेट ऑफिसर इज अ मेल उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.30 है, और प्रमोशन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रमोशन गिवन डेट ऑफिसर इज अ वुमन इज 0.15। we see that the probability of a promotion, that is event A, is affected or influenced by whether the officer is a man or woman। हमने देखा कि प्रमोशन के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट होती है कि ऑफिसर जो है वो मेल हो, मैन हो या वुमन, पर्टिकुलर बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एम इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। we would say that events A and M are dependent event। देखिए अगर तो हमारे जो इवेंट्स हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एट एम जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाए, प्रमोशन के बराबर हो जाए, तो तब तो हम कहें कि इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि 0.30 और 0.27 जो है दीज आर नॉट इक्वल, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट इवेंट है, that is the probability of event A is altered or affected by knowing the event that event A M the officer is a man exists. Similarly, with the probability of A given that woman is not equal to probability of A, we would say that events A and W are dependent events। अगर ये दो events आपके बराबर हो जाए, probability of A given that W is equal to probability of A हो जाए, जैसे कि 0.15 is equal to 0.15 हो जाए, तो तब तो आपके इवेंट हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। अगर वो बराबर नहीं है तो फिर आपके इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे, ठीक है जी। However, if the probability of event A is not changed by the existence of event M,
that is probability of A given that M is equal to probability of A, we would say that event A and M are independent event. This situation leads to the following definition of independent of two of events. Two events A and B are independent if आपके जो दो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब probability of A given that B is equal to probability of A, या probability of B given that A is equal to probability of B. अगर तो ये कंडीशन आपके बराबर हो, ये सिचुएशन हो, तब आपके जो दोनों इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट, अदरवाइज जो आपके इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं. ठीक है जी. Whereas the addition law, अब नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन लॉ है. Whereas the addition law of probability is used to compute the probability of union of two events, the multiplication law is used to compute the probability of intersection of two events. हमने देखा कि एडिशन लॉ में क्या होता है कि आप कंप्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी यूनियन के साथ. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, उसमें अगर आपके पास ए एंड बी जीरो हो जाए, ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है, अदरवाइज जो है वो आपके साथ चल रहा होता है. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन लॉ में आप इंटरसेक्शन पे बात कर रहे थे. ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन लॉ इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजिंग इक्वेशन 4.7 जो हमने लोगों ने देखा. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में देखें तो कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट. तो अब आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को नीचे से आप ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास ये फॉर्मूलेशन बचेगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी. ठीक है, और अगर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट हो, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो फिर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, राइट. ठीक है, यानी कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए, तो फिर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, अदरवाइज जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स है. ठीक है, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए and b that is probability of a multiplied by probability of b given that it, और probability of b given that it भी हम लोग given that a भी हम लोगों ने देखा अगर वो b के बराबर हो जाए, ठीक है, तो फिर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज आपके डिपेंडेंट इवेंट है. ठीक है जी. To illustrate the use of multiplication law, consider a newspaper circulation department. Whether it is known that 84% of the household in a particular neighborhood subscribe to the daily edition of the paper, if we let D denote the event that a household subscriber to the daily edition, that is probability of D is equal to 0.84. In addition, that it is known that the probability that a household that already holds a daily subscription also subscribes to the Sunday edition, that is probability of 0.75, right. कि क्या है कि हमें पता है प्रोबेबिलिटी जो बंदा पहले हाउस होल्ड जो है वो डेली सब्सक्रिप्शन रखता है वो संडे की भी रखता है. ठीक है, तो उसकी 0.75 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट डी दैट इज 0.75. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ हाउस होल्डर सब्सक्राइबर्स टू बोथ, अब उसको क्या करना, बोथ यानी कि एस एंड डी, बोथ द संडे एंड डेली. प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड डी ऑफ द न्यूज़पेपर यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन लॉ. वी कंप्यूट द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड डी एस, that is probability of S and D, that is probability of D multiplied by probability of S given that D, that is 0.84 multiplied by 0.75, that is 0.63. We now know that 60% of the households subscribe to both the Sunday and daily editions. Before concluding this section, let us consider the special case of the multiplication law where when the events involved are independent. Recall that events A and B are independent whenever probability of A given that B is equal to probability of A
or probability of B given that A is equal to probability of B. So in this case, we have multiplication law for independent events as probability of A and B is equal to probability of A multiplied by probability of B. To compute the probability of the intersection of two independent events, we simply multiply the corresponding probabilities. Note that the multiplication law for independent events provides another way to determine whether A and B are independent. That is, if probability of A and B is equal to probability of A multiplied by probability of B, then A and B are independent. If probability of A and A intersection B is not equal to probability of A multiplied by probability of B, then A and B are dependent. As an example of the multiplication law for independent events, consider the situation of a service station manager who knows from past experience that 80% of the customers use a credit card when they purchase gasoline, right? तो 80% लोग वो हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं gasoline के लिए. What is the probability that the next two customer purchasing gasoline will each use a credit card? Evaluate the event. अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो नेक्स्ट दो बंदे हैं वो भी जो है, नेक्स्ट जो कस्टमर है वो भी जो है वो क्रेडिट कार्ड ही यूज करेगा. सो वी डिफाइंड इवेंट ए, द इवेंट दैट अ कस्टमर यूजेस, फर्स्ट कस्टमर यूज अ क्रेडिट कार्ड. B, the event that the second customer uses a credit card. Then the event of interest is A and B. Given no other information, we can easily assume that A and B are independent. So we need to find probability of A and B, that is probability of A, multiplied by probability of B, that is 0.80, 0.80, that is 0.64, right? So we are 64% chances हैं कि जो आपका नेक्स्ट कस्टमर है वो आपका क्रेडिट कार्ड ही यूज करेगा. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 30 देखें. क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपके पास दो इवेंट्स है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.60, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0.40. First you need to find a probability of A given that B, that is probability 0.40 divided by 0.60. इस तरह हो जाएगा. सेकंड पार्ट जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए है तो 0.40 डिवाइडेड बाय 0.50. ठीक है. और आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो आप उसको उस रिलेशन के साथ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आ जाए तो इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आएंगे तो डिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है. और इसी तरह बी पार्ट के लिए भी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए आपके 0.60 के बराबर आ जाएगा तो आपके इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज जो आपके इवेंट्स है वो डिपेंडेंट इवेंट्स है. ठीक है जी. Question number 30 देखें. Assume that we have two events A and B that are mutually exclusive. Assume. अब देखें इसमें यहाँ उसने कह दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ कि इन दोनों के दरमियान कोई चीज जो है वो कॉमन नहीं है. ठीक है जी. Assume further that we know probability of A that is 0.30, probability of B that is 0.40. तो what is probability A and probability of A intersection B? अब हमें पता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती. तो पहला पार्ट जो है वो आपका probability of A, जो पहला पार्ट है probability of A intersection B that is 0. ठीक है. इसका आंसर हो जाएगा 0. ठीक है जी. और सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एट बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि जो आपका यहाँ का फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो 0 है. A student, part C, a student in statistics argues that the concept of mutually exclusive events and independent events are really the same, and if events are mutually exclusive then they must be independent. Do you agree with this statement? Use the probability information in this problem to justify.
तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये होता है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जब ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है, तो आप उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो कह सकते हैं, लेकिन आप उनको इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए शर्त जो कंडीशन है वो जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाजमी हो, ठीक है। ये कंडीशन पूरी होगी तो तभी जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। What general conclusion would you make about mutually exclusive and independent events given the result of this problem? तो हम इसमें कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 में देखें, आपके पास आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटीज बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा जी, ठीक है। The US Department of Transportation reported that during November 83.4% of Southwest Airlines flights, ठीक है, 75.1% of US Airways flights and 71.1% of JetBlue flights arrived on time, ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट की है नवंबर में कि जो साउथ वेस्ट एयरलाइन की फ़्लाइट्स हैं वो 83.4%, जो यूएस एयरवेज की फ़्लाइट्स हैं वो 75.1% और जो जेट ब्लूज की फ़्लाइट है वो 70.1% ऑन टाइम अराइव हुई हैं, ठीक है। Assume that on this time performance is applicable for flights arriving at Discourse A of the Rochester International Airport and that 40% of the arrivals of Discourse A or Southwest Airlines flights, 35% are US Airways flights and 25% are JetBlue flights, right? तो ये परफॉर्मेंस जो कैलकुलेट बेसिकली की गई है वो डिस कॉन्कोर्स ए के ऊपर, जो कि रॉचेस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कॉन्कोर्स ए था, उसके ऊपर किए गए हैं, जिसमें से जो 40% फ्लाइट्स थी वो साउथ वेस्ट एयरलाइंस की थी, 35% जो 35% फ्लाइट्स थी वो यूएस एयरवेज की थी और 25% जो फ्लाइट्स थी वो जेट ब्लू फ्लाइट्स की थी, ठीक है। बिफोर आगे जाने से पहले हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में से जो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं हम उनको पहले जो है वो नोटेशन वाइज जो है वो लिखेंगे, ठीक है जी। तो आप देखें हमारे पास हम लोग क्या करते हैं कि चार, पहली चीज आप इवेंट बनाते हैं ओ का मतलब है कि फ्लाइट्स अराइव्स ऑन टाइम, ओ कम्प्लीमेंट फ्लाइट अराइव्स लेट, ठीक है। लेट एस आप डिफाइन करें साउथ वेस्ट फ्लाइट्स के लिए, यू आप डिफाइन करें यूएस एयरवेज फ्लाइट के लिए, जे आप डिफाइन करें जेट ब्लू फ्लाइट्स के लिए, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या है, देखिए आपके पास गिवन ये है कि 83.4% साउथ वेस्ट की फ्लाइट्स वो हैं जो कि अराइव हुई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम गिवन डेट क्या है साउथ वेस्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन डेट एस जो है वो आपके पास 0.3834 है, क्योंकि आपके पास परसेंटेज में तो आप उसको 100 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, डेट इज 0.834, ठीक हो गया जी। इसी तरह आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लाइट्स अराइव ऑन टाइम गिवन डेट फ्लाइट इज यूएस एयरवेज, डेट इज 0.751। तीसरी प्रोबेबिलिटी जो आपके पास गिवन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइव ऑन टाइम, डेट इज ओ गिवन डेट जेट ब्लू फ्लाइट, डेट इज 0.701, ठीक हो गया जी। और जबकि आपके पास ये जो 40%, 30%, 35% और 25% है, ये आपके पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ साउथ वेस्ट की, डेट इज 0.40, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूएस एयरवेज की, डेट इज 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेट ब्लू की, डेट इज 0.25,
0.25। ठीक हो गया। तो सबसे पहले पार्ट उन्होंने क्या कहा है, डेवलप अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल विद 3 रोज। आपको 3 रोज बनानी है, ठीक है, एंड 2 कॉलम्स। एयरलाइंस की 3 रोज होंगी, ठीक है। पहला साउथ वेस्ट, दूसरा आपका यूएस एयरवेज, तीसरा आपका जेट ब्लू, और 2 कॉलम्स आपके होने चाहिए जिसमें क्यों ऑन टाइम वर्सेस लेट अराइवल, ठीक है। तो आपने 2 कॉलम बना लिए। अब आपको ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी करनी है कैलकुलेट, ठीक है, और आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटीज और टेबल बनाना है जिसमें आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटीज होंगी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो देखें, आपके पास टोटल में गिवन है, आपके पास जो जो चीज़ें आपने प्लेस कर दी हैं। अब आपको साउथ वेस्ट की निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ एंड एस की, डेट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए आपके पास गिवन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन डेट एस 0.834 आपके पास गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ एंड एस फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन डेट एस का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ एंड एस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आपका उधर चला जाएगा, तो आपका इस तरह आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो है वो 0.336 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह आप बाकी को भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ एंड यू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ गिवन दैट यू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ यू दैट इज 0.751 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 0.2629 आ जाएगा। और इस तरह आप बाकी को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये पूरा टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Second part, an announcement has just been made that flight 1424 will be arriving at gate 21 in concourse A. What is the most likely airline for this arrival? तो देखिए आपके पास गिवन देखें प्रोबेबिलिटी जो है वो साउथ वेस्ट की 0.40 है। आपके पास यूएस फ्लाइट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.35 है। आपके पास जेट ब्लू की फ्लाइट्स जो हैं वो 0.25 है, ठीक है। तो जो साउथ वेस्ट एयरलाइन है उसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज 0.40, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पार्ट सी देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्लाइट 1424 विल अराइव ऑन टाइम। तो आप जो है वो आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ फाइंड करनी है कि अराइव ऑन टाइम, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड O plus probability of U and O plus probability of J and O, that is 0.336 plus 0.2629 plus 0.1535 1753, that is equal to 0.7718, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। और वो suppose that an announcement is made saying that flight 1424 will be arriving late, what is the most likely airline for this arrival, what is the least likely। तो आपको फाइंड करना है कि आपके पास अगर फ्लाइट लेट हो रही है तो आपके कौन सी जो है वो सबसे ज़्यादा आएगी। आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट ओ कॉम्प्लीमेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एस एंड ओ सी divided by probability of OC, that is 0.60664 divided by 0.228482। तो इस तरह आप करके that is 0.90, और इस तरह आप बाकी कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। ये जो आपको मैंने समझाया ये मैं आपको भी जो है वो लेक्चर के साथ ही जो है वो आपको एक पेपर के ऊपर भी करके डिटेल में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आपने इस सिलसिले में परेशान नहीं होना कि आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है। जो मैं करके भेजूंगा उन्हीं लाइंस के ऊपर आप क्या करें, आप नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपसे हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको जो है वो करवा दूंगा, नो इश्यूज, ठीक है। वेट, लेट मी check if we have one another question of
Okay, so we'll एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इन चीज़ों को कवर करेंगे। Copper Realty, question number 56. Copper Realty is a small real estate company located in Albany, New York, specialization primarily in residential listing. They recently became interested in determining the likelihood of one of their listing being sold within a certain number of days. An analysis of company sales of 800 homes in previous year produced the following data. ये आपके पास डाटा है, ठीक है, अंडर 31 से लेके 90 तक और 90, ठीक है, इनिशियल प्राइसिंग। Question part A, if A is defined as the event that a home is listed for more than 90 days before being sold, estimate the probability of A। तो आपको फाइंड क्या करना है कि आपको मोर देन 90 डेज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेट इज इक्वल टू 200, आप 200 जो है वो टोटल है डिवाइडेड बाय 800, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी डेट इज इक्वल टू 0.25, ठीक है जी। पार्ट बी, इफ बी इज डिफाइंड एज द इवेंट एंड दैट द इनिशियल आस्किंग प्राइस इज अंडर 115,000, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें देखें आपके पास क्या है, अंडर 150 में देखें आपके पास 100 है, डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास 800 है, दैट इज इक्वल टू 0.125 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कंप्यूट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे, ठीक है, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.125 दैट इज इक्वल टू 0.0125 आ जाएगा, ठीक है जी। Assuming that a contract was just signed to list a home with an initial asking price of less than 160, what is the probability that the home will take Cooper Realty more than 90 days to sell? आपको क्या है, probability of A, अब आपको क्या करना है, probability of A given that B, ठीक है जी, probability of A given that B आपको find करना है, that is probability of A and B divided by B, that is 0.0125 divided by 0.125, that is equal to 0.10, ठीक है। आर इवेंट सी एंड बी इंडिपेंडेंट, तो आप देखते हैं, देखें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एट बी जो है वो 0.0125 था, जबकि ए जो था वो 0.25 था। तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारे जो इवेंट्स है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप कुछ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, तो आप मुझे डू लेट मी नो, मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 37, 38, ठीक है, ये दो क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपसे हो जाते हैं ठीक, नहीं तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करने लेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अपने जो क्लास का सेशन होगा उसमें जो है वो इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू जी।